Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So we are taking up the next set of 40 questions from 2016 CSAT paper. So we'll be starting with question number 41. So we have few passages in the beginning. So according to this, it is talking more about transparency and competition as far as crony capitalism and things are related to that. So middle income trap and economy is being talked about. So most logical corollary should be C, greater transparency in functioning of the government and promoting the financial inclusion are needed at present. Option C. Then a few more passages. So most logical, rational inference has to be identified. So climate adaptation should be examined in tandem with other economic development options. Option D. Okay, then here also most critical inference has to be identified. So biodiversity sustains the ability of nature to recycle water. Option A. Okay. Then fourth passage related to banking sector and the reforms. So we have to identify essentially implied, what message is essentially implied by the passage. So we need to promote financial inclusion. Option D. And then passage number five. So on its basis, two statements are given. Now, correct one has to be identified. So only second is correct because first is stating that abolition of manual scavenging only can help in resolution of the urban sanitation problem. So only makes it incorrect. Yes, ma'am, sir. Okay, then passage six. So here, most logical and rational inference. So diverse, natural wants forced man towards social system. Option D. Okay, then passage number seven. So the statement, this is a single statement. So this statement refers to the antithesis of politics and economics. Option B. Okay, B, interrelationship. Fine, we'll go with this. Then interrelationship is being talked about. Then passage number eight. Now it is talking about greenhouse gases emissions, climate change, and the emissions from that. So talking about how the properties of soil, all of that can change because of the global greenhouse gases emissions, mainly from the anthropological sources. So, most logical and rational inference, it's Op- imperative for us to modify our land use practices in order to mitigate the climate change. Option B. Okay, now we have mathematical questions. So, we had to first draw this figure on the basis of the statement which is given. So we start from O, move towards northeast, then we move towards west. All this is given, the distance is given. We have to calculate OB. So simply use Pythagoras theorem and we'll get the value of x as 13 kilometers. Option B. Now here we are given with the agricultural field which is rectangular in shape, length and breadth is given to us, and their sum is given, it is 40 meters. So we have to calculate the area of agriculture field will not exceed which one of the following values. So you have to use common sense and hit and trial here. So like x1 and x2, so it is the like this, it is the agricultural field, so x1 will always be greater than x2. This is one thing which has to be kept in mind when we are assuming the values also on the basis of that the sum should be 40. So length and breadth, it can be 30 or 10, it can be 35 and 5, it can be 25 and 15. So if you calculate the प्रोडक्ट ऑफ दीज, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट कि एरिया किस वैल्यू से एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो इन दो वैल्यूज का हर पेयर का अगर हम कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट, वो एरिया होगा, तो मैक्सिमम वी आर गेटिंग 375, तो 400 स्क्वायर मीटर से एक्सीड नहीं होना चाहिए। Option A. बिकॉज आप इसमें ऐसे चेक कर सकते हो कि अगर 400, मतलब ऐसे भी इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है कौन सी वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो चेक करो जो मैक्सिमम है उसके आसपास की वैल्यू आप निकालो, क्योंकि और बाकी वैल्यूज उससे लेस ही है। तो अगर 400 या 300, ये दो ही ट्राई कर सकते हैं पहले।
देन सम ऑफ एजेस गिवन है 5 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली 3 years ago 80 years है। तो हमने लिख दिया है यहाँ इक्वेशन फॉर्म में। पहली इक्वेशन, एवरेज एज ऑफ फैमिली टुडे इज सेम एज इट वाज 3 years ago बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ अ बेबी ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग पीरियड। नाउ अब यहाँ पे आप इक्वेशन बनाओगे, जो पूरा स्टेटमेंट दे रखा है सेकेंड हाफ, इसमें एवरेज 3 years ago जो है वो सेम है, और जो आज एवरेज है फैमिली का, तो आज मतलब 3 years ago वाली एवरेज क्या होगी, सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द 5 मेंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल मेंबर्स फैमिली में कितने हैं, 5 है। ये हमें गिवन है, इस इक्वेशन से आ गया। नाउ इक्वल टू एवरेज टुडे के लिए आप कैसे लिखोगे, 80 तो हो गया 3 साल पहले की एज, और अब 3 साल के बाद 5 लोग, तो 3 5 15 होते हैं, तो +15 years होगा, क्योंकि 3 साल आगे का भी हमें टाइम पीरियड ऐड करना है। प्लस बी, तो एक जो बेबी एक मेंबर ऐड हो गया, तो अब 5 की जगह 6 हो जाएंगे फैमिली मेंबर्स। एंड अब हम बी की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन से, क्योंकि एक ये ही वेरिएबल यहाँ है, तो इट विल बी 1 year। ऑप्शन बी। नाउ इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस, बेसिक पे और उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सिंपली दे ही रखा है टोटल एमोल्यूमेंट्स दोनों लोगों की सेम है, और अलाउंस एक पर्सन की 65% बेसिक पे है और सेकंड की 80% बेसिक पे है, तो हमें रेशियो निकालना है, इसकी वैल्यू हमें निकालना है, बेसिक पे ऑफ ए टू बी। तो यहाँ सिंपली पहले एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि बेसिक पे प्लस एमोल्यूमेंट्स पूरी टोटल सैलरी होती है मंथ में जो पर्सन अर्न करता है। सो यहाँ पे सिंस इमोल्यूमेंट्स सेम है, तो हम इक्वल टू लेके चलेंगे, दोनों जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है उसको हम इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे। रेशियो हमें निकालने हैं, इन दोनों की वैल्यूज नहीं निकालनी है, तो वो इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो आप इसको आगे सॉल्व करते जाओगे, यहाँ पे आप एलसीएम यूज करोगे, तो 12:11 आएगा। ऑप्शन डी। देन 53 में पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम अ बॉटम ऑफ अ लैडर, तो ये हो गया बॉटम ऑफ लैडर, मैंने स्लांटिंग में ड्रॉ किया। सो इफ ही हैज टू क्लाइंब 4 more steps टू रीच एग्जैक्टली मिडिल स्टेप, हाउ मेनी स्टेप्स डज द लैडर हैव। अब यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपका कॉमन सेंस और प्रेजेंस यहाँ टेस्ट हो रहा है। तो पहले स्टेप पे ऑलरेडी पर्सन इज स्टैंडिंग, अब 4 स्टेप्स आगे और वो क्रॉस करता है, 1 2 3 4, तो एग्जैक्ट मिडल पे पहुंच जाते हैं, तो आप कैलकुलेट करोगे ये टोटल 5 स्टेप्स हो गए। तो अगर फिफ्थ एग्जैक्ट मिडल है, तो मतलब उसके इस साइड भी इक्वल स्टेप्स होने चाहिए और इस हाफ में भी इक्वल स्टेप्स होने चाहिए, तो यहाँ पे 4 more स्टेप्स होने चाहिए, तो टोटल 9 होंगे, नॉट 10। क्योंकि आप ऐसे ले सकते हो कि फिफ्थ पे अगर वो ऑलरेडी है तो आगे 5 स्टेप्स और होने चाहिए, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे 4 इस साइड और मिडल में फिफ्थ वन है, तो टोटल 9 होने चाहिए। ऑप्शन बी। देन पैसेज, नहीं पैसेज नहीं है यहाँ पे। वीसी की 3 फ्रेंड्स दे रखे, एबीसी, दे मेट, फाउंड दैट ईच अदर, यहाँ पे 3 चीजें हैं, गारमेंट्स, कलर क्या है, एंड उनका सरनेम, तो ये 3 3 ऑप्शन दे रखे बिकॉज दे आर 3 फ्रेंड्स, और ये कुछ कंडीशंस दे रखी, तो आप इसको लिखते जाओ, और जो एक्सेप्शंस है उनके आगे आप क्रॉस लगा दो कि ये यहाँ पे नहीं हो सकता है। 3 क्वेश्चंस है, तो सी का सरनेम क्या हो सकता है, ये हम नहीं पूरा आगे सॉल्व कर सकते बिकॉज ऑफ द लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, तो इट कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। कलर ऑफ टाई भी नहीं डिटर्मिन हो सकता है, एंड हु वोर द स्वेटर, तो ए होना चाहिए यहाँ पे। 54 का ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए, सी का सरनेम। बट यहाँ पे मेरे से नहीं सॉल्व हुआ, मैंने इसको बहुत टाइम डिवोट किया, मेरे हिसाब से इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। मतलब दो दो ऑप्शन बच गए बी और सी के बीच में, उसके बाद उसको फाइनल एलोकेट कैसे करेंगे, ये पता चल गया रिबेरियो जो है वो ब्लू के साथ जाएगा, बट कौन से इंडिविजुअल को जाएगा ये थोड़ा यहाँ पे मेरे को नहीं समझ में आया। तो दिव्या, अगर आपने इसको सॉल्व किया तो एक बार एक्सप्लेन कर दो। इसमें गिवन था कि जैसे जो बी और रिबू है, ये स्वेटर नहीं पहन सकते और वाइट नहीं पहनेंगे, तो वाइट इन दोनों में से किसी के पास नहीं होगा, वाइट सी के पास जाएगा, सी ने टाई पहनी हुई है। नहीं, तो जब हम कैसे, यहाँ पे पहला बोला है ना, नीदर बी नॉर रिबेरियो वोर अ वाइट स्वेटर, तो स्वेटर का कलर दे रखा है, वाइट कलर ही होगी स्वेटर, तो तो यहाँ पे निकाल पीछे लिया भी कि जैकेट, स्वेटर और टाई, वाइट स्वेटर नहीं पहन सकते, पर अगर कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कलर दिए हुए हैं उन्होंने ब्लू, वाइट और ब्लैक, और इन्होंने मेंशन किया है कि ये ब्लू कलर, ब्लैक कलर की पहनना प्रेफर नहीं करता, तो जो रिबू है वो ना तो ब्लैक कलर पहनेगा ना वाइट कलर पहनेगा, इसलिए वो ब्लू पहनेगा। वाइट कलर की टाई सी ने पहनी हुई है और ब्लू रिबू पहनेगा, तो ब्लैक कलर ऑटोमेटिकली बी के पास जाएगा। उसी तरह से हम उनके जो
कलर है टाई का वो वाइट होगा, उस तरह से पूरा प्रोसेस बनेगा, फिर होगा ये। ऐसे ही सोल्व किया था नहीं, मैंने पर। वाइट यहाँ पे टाई का कलर कैसे हो जाएगा? यहाँ ऑलरेडी लिखा है वाइट स्वेटर, स्वेटर है वाइट कलर का। तो गिवन है इन्फॉर्मेशन, स्वेटर इज ऑफ वाइट कलर, टाई वाइट कलर का कैसे हो जाएगा? तो स्वेटर तो वाइट है ना ऑलरेडी। दो ही कलर बचे, ब्लू और ब्लैक। तो ब्लू या तो जैकेट होगी या टाई होगी। तो ये कंफ्यूजन है। बाकी 55 और 56 का क्या है? 55 का बी है। अच्छा, 55 का बी, ब्लू। टाई इज ब्लू। हाँ, तो आप टाई को वाइट क्यों बोल रहे हो? टाई कैन नॉट बी वाइट, क्योंकि वाइट वही हो गया ना, वाइट स्वेटर गिवन है। दो ही कलर बचे, ब्लू या ब्लैक। और हु वोर स्वेटर? ए। ये ठीक ए। है। हाँ। ठीक है। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ट्री है ए बी, ट्रंक ऑफ द ट्री इज दिस। ए जो है ग्राउंड पे पॉइंट है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है सी पॉइंट से, इट फॉल्स डाउन ऑन द ग्राउंड, ये डी पॉइंट है। और हमें पूरी ए बी की लेंथ निकालनी है। इतना हमें दे रखा है, 12 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगेगा और हमें सी बी की वैल्यू मिल जाएगी। अब टोटल पूछा है ए बी, तो ए बी का होगा 12 प्लस सी बी की जितनी लेंथ आएगी, तो 25 होगा टोटल। ऑप्शन बी। 58 में, ये भी डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम है। बस यहाँ पे ये है कि आप जो डायरेक्शन है इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ के डायग्राम सही बनाना चाहिए। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। नॉर्थ मूव करेंगे, फिर हम ईस्ट जाएंगे, फिर वहां से बैक आएंगे 19 किलोमीटर। तो 15 ये ऑलरेडी कवर हो गया, 4 किलोमीटर बचा इतना। फिर हम साउथ मूव करेंगे। अब हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो इसके लिए ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी और ये निकालना पड़ेगा। सिंस ये 12 है तो यहाँ 12 होगा। ये पूरा 15 है तो ये 12 और ये 3 बचा। तो ये 4 आ गया क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो इसलिए 3 और 4 आ गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक्स हम निकाल सकते हैं, जो कि 5 किलोमीटर होगा। ऑप्शन ए। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में चेक करना। अ क्यूब हैज ऑल इट्स फेसेस पेंटेड। हमें निकालना है स्मॉल स्मॉल क्यूब्स जो हैं विद ओनली वन साइड पेंट, कितने हो सकते हैं स्मॉल में। और साइड दे रखा है जो स्मॉल क्यूब है, 1/4 ऑफ द बिग क्यूब। तो इस बेसिस पे 1/4 होगा, मतलब 4 पार्ट्स हो सकते हैं, 1 2 3 4। दोनों साइड सेम होगा क्योंकि क्यूब हो तो इक्वल होगा। अब ये बॉर्डर वाला एरिया हमने छोड़ दिया, क्योंकि इस साइड अगर हम निकालेंगे तो वन से ज्यादा हो जाएगा कलर, हमें सिर्फ वन निकालना है। तो ये वाले जो होंगे ये वन साइडेड होंगे, कलर्ड। तो हर 6 साइड से 4 निकल सकते, तो मैंने तो ये सिंपल लॉजिक लगा के 24 होना चाहिए। बी। बी करेक्ट है। यस मानसी। ठीक है। उसके बाद अब ये वर्क डन वाला क्वेश्चन है। राम एंड श्याम वर्क ऑन अ जॉब टुगेदर 4 days, कंप्लीट 60% वर्क। दोनों साथ में वर्क करके 60% कंप्लीट कर देते, तो लिखते हैं हमने। राम टेक्स लीव, फिर शाम ही वर्क करता है इंडिविजुअली 8 days में, वो पूरा जॉब कंप्लीट कर देता है। तो इससे पूरा हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। पूरे क्वेश्चन को पूछा ये है कि राम कितना टाइम लेगा अगर उसको इंडिविजुअली पूरा वर्क करना है, तो टाइम निकालना पड़ेगा। उसके लिए पहले हम शाम वाला कैलकुलेशन करेंगे कि 8 days में 40% वर्क कर रहा है, तो 100% वर्क करने के लिए उसको 20 days चाहिए टोटल। अब यहाँ पे हम निकालेंगे एफिशिएंसी। जैसे हमें पता चल गई 4 days में अगर 60% वर्क हो रहा है, तो पहले शाम 4 days में कितना वर्क कर सकता है, 20%। तो इसमें से 20% सिर्फ शाम कर रहा है, बचा 40% वो राम करेगा। तो राम अगर 4 days में 40% वर्क कर सकता है, तो 100% वर्क करने के लिए राम को अलोन 10 days चाहिए, वही हमें निकालना है। तो 10 days इज आंसर। ऑप्शन सी। ओके। अब ये यहाँ पे पूछा है कि मिलिट्री कोड है, सिस्टम को पहले लिखता है सिसमेट। तो आप यहाँ पे पहले निकालो, जैसे फर्स्ट हाफ जो है वो सेम है, SYS, और जो लास्ट वाला है उन्होंने रिवर्स कर दिया। नियरर को लिखता है पहले। अब इसमें ये कर दिया कि आगे वाला जो फर्स्ट 3 है वो उन्होंने रिवर्स कर दिया, पीछे वाला सेकंड हाफ का ऑर्डर सेम है। तो फ्रैक्शन को आप कैसे लिख सकते हो? तो फ्रैक्शन वाले में जैसे हमने सिस्टम किया है तो ऑल्टरनेट चलेगा। तो फर्स्ट हाफ सेम रहेगा, इसमें हम 4 लेंगे, फर्स्ट 4 एंड सेकंड 4, आपको हाफ डिवाइड करना है। जो सेकंड हाफ होगा उसको आपको रिवर्स करके लिखना है, NOIT। तो ऐसे ऑर्डर बन जाएगा, तो बी करेक्ट। ऑप्शन डी। इसमें हाफ हाफ किया हुआ है, जैसे सिक्स टर्म है सिस्टम में, तो थ्री एक साइड लिए, थ्री एक साइड लिए। एस है वो थर्ड नंबर वाले को फर्स्ट पे लाया है, सेकंड वाला सेकंड पे रहा, फर्स्ट वाला थर्ड पे गया, सेम पीछे में हुआ है। एम जो है वो टी की जगह पर आया, टी एम हमने की जगह तीन पर। तीन ही रखा है।
तीन तीन ही रखे हैं ना, मतलब ये बोल रहे हो? हाँ लास्ट में मतलब डिजिट को 4 4 या फिर जिस तरह से 8 डिजिट 8 आएंगे ना उसमें फ्रैक्शन में जाते हैं, तो उसमें फोर हम्म। फोर में किया है, और सिस्टम और उसमें 3 3 में ब्रेक किया है। इंटरचेंज किया है इसमें प्लेस को, वर्ड्स की। फिर भी डी कैसे हो गया? सी ए आर एज इट इज, एफ आ गया, लास्ट का एन आ गया, और आई एज इट इज, टी लास्ट लास्ट में चला गया। बीच के जो अक्षर है उनको सेम रखा है, फर्स्ट और फोर्थ को चेंज किया है सेम, फर्स्ट और थर्ड को चेंज किया है, बीच वाला अक्षर सेम रहा है। नहीं, मेरे को नहीं समझ में आई अभी भी। जैसे जैसे सिस्टम है। देखो, ये सिस्टम है, सिस्टम लिखा हुआ है, इसमें एस वाई एस सेम है। आप उसके ऊपर काउंटिंग लिख दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाँ। सिस्टम, तो जो 3 नंबर पर है उसको वो फर्स्ट पे रख रहा है, और जो फर्स्ट अच्छा। नंबर पे है उसको वो 3 पे रख रहा है। सेम एज हम्म। इट इज, 6 नंबर पर है उसको वो फोर्थ पे ले आया, और जो फोर्थ पे है उसको वो सिक्स्थ पे ले आया। तो वो बन गया, वो एस वाई एस सेम है, इसलिए हमें लग रहा है कि वो सेम एज इट इज रख दिया, लेकिन सेम चीज उन्होंने नेक्स्ट में भी किया, जैसे एन ई ए पे फिर लेकिन एन पीछे जो है लिखा गया, और ए एन की जगह पर थर्ड, मतलब हाफ हाफ में ब्रेक करके जितने भी वर्ड है उसमें, जैसे 8 अक्षर है फ्रैक्शन में, तो फिर उसको 4 4 में डिवाइड किया है। वहां 6 है तो हम्म। इसलिए उसने 3 3 में 2 पार्ट बनाए, और फिर जो थर्ड नंबर पर है वो पहले पे आया, जो पहले पे है वो थर्ड नंबर पे गया, बीच की डिजिट सेम रखी है उसने। अच्छा, इस ठीक है। तरह से भी बनाया। तो सी, अच्छा ये फिर सी आ गया और एफ इधर रिवर्स इंटरचेंज हो रहा है मतलब। इंटरचेंज और हो गया, उसी तरह से टी टी और एन। एन इंटरचेंज हो गया, ठीक है, ये हाँ बीच वाले सेम है, ठीक है। हाँ, ये तो बड़ा फिर वही है, कंफ्यूजिंग है, वरना मेरे को तो ऐसा लगा कि आगे के फर्स्ट हाफ इसमें इक्वल है, इसके में पीछे सेकंड हाफ इक्वल है। अब इसमें आगे वाले चेंज होंगे फिर से, मतलब हाँ। सेम होगा, पीछे वाला चेंज होगा, ठीक है चलो, सी इज द राइट आंसर। डी। सी नहीं, डी इज द राइट आंसर। यस। 1062 में आर एंड एस दे आर डिफरेंट इंटीजर्स, वो डिविजिबल फाइव से डिविजिबल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट नेसेसरली ट्रू। तो ये भी हिट एंड ट्रायल से आप ट्राई करोगे, और तो कोई मेथड नहीं है इसका, कोई फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं है। तो एज्यूम कर लो दो इंटीजर्स मैंने 5 एंड 10, कोशिश ये करना कि इसमें से कोई कंडीशन आप ना सेटिस्फाई हो, ऐसा सॉल्व करके चेक करो। तो 5 एंड 10 में मेरे हिसाब से ये सेकंड वाला सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शन 15/10 आएगा, तो पूरा सॉल्व नहीं हो रहा, 3/2 बचेगा। ऑप्शन बी। ठीक है। नाउ इसमें पूछा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 300 विद ईदर, जो या तो दे आर बिगनिंग विद 2 या वो एंड हो रहे हैं विद 2। तो अब डिवाइड कर लो 100 से 199, पहले आप देखो। तो इसमें बस पीछे वाले में ये होगा, तो ये 10 केसेस हो सकते हैं। अब 200 से 299 में निकालोगे तो 100, क्योंकि 2 आगे आ ही रहा है हर एक नंबर में, तो 100 नंबर और 300 में कोई है नहीं, तो मेरे हिसाब से 110 होना चाहिए। ए, ऑप्शन ए। क्योंकि रिपीटेशन हो नहीं सकता एज पर द ऑप्शन। तो पैसेज है, क्रिटिकल मैसेज क्या है, तो आर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द फूड सोर्स फ्रॉम एनिमल्स पुट्स ग्रेटर बर्डन ऑन आर नेचुरल रिसोर्सेज। ऑप्शन ए। हाँ, 64 का ए। देन पैसेज टू 65, मोस्ट लॉजिकल अजम्पशन क्या होनी चाहिए। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट मेरे हिसाब से आई वेंट विद डी, पीपल हु आर नॉट लैक्टोज टॉलरेंट कैन नॉट डाइजेस्ट एनी डेयरी प्रोडक्ट। ऑप्शन बी। बी दे रहा, परमानेंट चेंज इन फूड हैबिट कैन ब्रिंग अबाउट। अब जेनेटिक चेंज कैसे बोल सकते हैं इसको, ये क्योंकि लैक्टोज और जेनेट जहाँ मैंने जीन्स दिया हुआ थोड़ी है, चेंज हो रहे हैं। चाइना और जो थाई के पीपल थे वो लैक्टो टॉलरेंस नहीं है, क्योंकि वो उस चीज़ को अडेप्ट नहीं करते आ रहे। पर जब हम 10,000 साल पहले की और उसके बाद की बात करते हैं, तो जो जो लोग वो कंज्यूम कर रहे हैं वो चीज़ें चेंज हुई हैं, जिसकी वजह से जीन्स में चेंज आया है। अगर हम कंज्यूम करते हैं तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर भी उस तरह के जीन्स प्रोवाइड जाएंगे, तो इस अकॉर्डिंग मैंने बी लगाया था इसका। ठीक है चलो, थोड़ा कंफ्यूजिंग था ये मेरे लिए। पैसेज थ्री, इसमें पूछा है अबाउट द स्टेटमेंट ऑथर इम्प्लाइज व्हाट द ऑथर इम्प्लाइज। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन कमर्शलाइज सेक्टर ये होना चाहिए, अंडर लेवल कंट्रीज में इट रेंडर्स नेशनल इनकम कंपैरिजंस ओवर कंट्रीज डिफिकल्ट। बी, ऑप्शन बी। देन पैसेज फोर, मोस्ट लॉजिकल कॉरोलरी क्या हो सकती है, तो इंक्रीजिंग ग्रीन कवर could trigger the release of carbon trapped in soil. ऑप्शन डी। देन हेयर फंडामेंटल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं टू रिजॉल्व दिस चैलेंज ऑफ फूड सिक्योरिटी, तो 2 and 3 होना चाहिए। ऑप्शन बी, 2 एंड 3। हम्म हम्म अब इसी पैसेज पे ही है,
the biggest challenge to the world agriculture, achieve a balance between demand for and supply of food. ऑप्शन डी। फिर पैसेज के ऊपर ही है, द फॉलोइंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग हंगर एंड स्टार्वेशन डेवलपिंग कंट्रीज में, तो 1 और 3 होना चाहिए। ऑप्शन सी। सी ऑप्शन। 71 में इशू द वर्ल्ड वाइड सप्लाई ऑफ फूड इज गेन इम्पोर्टेंस मेनली बिकॉज ओनली 3 लिमिटेशन इन द कैपेबिलिटीज फॉर सस्टेन सप्लाई ऑफ फूड। ऑप्शन बी। ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। कंडीशंस दे रखी हैं और 4 नंबर है, 1 2 3 4। 4 लेटर्ड हम नंबर हमें बनाना है। पॉसिबिलिटीज निकालनी कितने हो सकते हैं, तो ये सारी कंडीशंस पहले लिख लो, वरना कुछ स्किप भी हो सकता है। तो लास्ट में 4 नहीं हो सकता है, स्टार्टिंग में 1 नहीं हो सकता है, 2 और 3 और 3 2 साथ में नहीं हो सकते, और 1 और 3 भी साथ में नहीं हो सकते। तो आप 2 और 3 का पेयर लेके चलो कि उनकी पोजिशंस कैसे चेंज कर सकते हैं, उससे आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो 6 पॉसिबिलिटीज है। इसके 72 का ऑप्शन ए है, पर जो 2 4 1 3 है, इसमें 1 3 एक साथ तो आ गए, सेकंड कंडीशन कहाँ फॉलो हुई इस वाले में? कौन मेरे तो से वाले? 4, सेकंड 2 4 1 3, जो 6 के जस्ट हाँ, साथ। 1 इज नॉट टू बी इमीडिएटली फॉलोड बाय 3। हाँ, ये नहीं होगा, फिर कोई और नंबर बन सकता है ये, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है ना। तो थोड़ा सा हाँ, इसमें आइडिया भी ले सकते हैं। हाँ, ये वाला नंबर नहीं होगा, 1 के बाद 3 नहीं होगा, 3 के बाद 1 हो सकता है। यहाँ पे भी नहीं होगा, फिर ये 1 और 3, 1 और 3 यहाँ पे वॉयलेट हो रहे हैं। मेरे 4 पेयर बने, उसके बाद मेरे को समझ नहीं आया, इसमें 6 होंगे, पर हाँ, ऑप्शन। तो हम मिनिमम फिर, क्योंकि 4 पे ही अटक रहे हैं या फिर जो भी है, तो मिनिमम ही बेस्ट सूटेबल होना चाहिए। यस, ऑप्शन ए। हम्म। अब ये है वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन। तो सिलेंड्रिकल ओवरहेड टैंक है, रेडियस 2 मीटर का, हाइट 7 मीटर है, टू बी फिल्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड टैंक का हमें डायमेंशन दे रखी है। तो क्यूबॉइड होगा, क्योंकि आप देख सकते हो लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें दे सकती है, दे रखी है। तो हाउ मच पोर्शन अंडरग्राउंड टैंक में स्टिल इट इज फिल्ड विद वाटर आफ्टर फिलिंग द ओवरहेड टैंक कंप्लीटली। सो हेयर वी सी सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है πr²h। दोनों डायमेंशन दे रखे हैं, आप कैलकुलेट कर लो। वॉल्यूम, टैंक की वॉल्यूम निकाल लो टोटल। टैंक में पानी कितना बचेगा, आप माइनस कर लो, दोनों की जो वॉल्यूम आती है 44 क्यूबिक मीटर बचेगा। अब लेफ्ट का, क्योंकि हमें ऑप्शन में ऐसे रेशियो में दे रखा है, तो जितना पानी बचा है टोटल जो वॉल्यूम है टैंक की, उससे डिवाइड करोगे तो 1/3 आएगा। ऑप्शन ए। ओके। यहाँ पे टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं। गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, तो हमने लिख लिया इक्वेशन में, और गर्ल्स प्लस बॉयज 60 स्टूडेंट्स होना चाहिए। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ बॉयज आ जाएगा 20 है। रैंक दे रखी है, कमल जो कि बॉय है 17th है। एंड इफ देर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, द नंबर ऑफ बॉयज इन रैंक आफ्टर हिम कितना होना चाहिए। तो अगर गर्ल्स कमल के आगे 9 है, उससे ज्यादा हो नहीं सकती, तो 17 बाकी। अब आगे बॉयज कितनी पोजिशन फिल करेंगे, 7। 7 + 1 कमल, तो 8 बॉयज ऑलरेडी हो गए हैं। अब कमल के बाद कितने बॉयज बचे, 20 - 8, 12। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। हम्म। 75th, ए एंड बी दे वॉकिंग अराउंड a circular park. टाइम दे रखा है 8 AM पे दे स्टार्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन में दे आर मूविंग। ए की स्पीड है 2 राउंड्स पर आवर, बी की 3 राउंड्स पर आवर। नाउ कितने टाइम में वो क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, बिटवीन 8 and 9:30, तो 1.5 आवर्स में हमें निकालना है। सो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, तो रिलेटिव स्पीड क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वी विल ऐड। तो टोटल 5 राउंड्स 1 आवर में कंप्लीट हो रहा है। डिस्टेंस क्योंकि 30 मिनट्स का क्योंकि बचेगा, क्योंकि 1 आवर का तो हमें पता ही है कितने राउंड्स होंगे। तो 30 मिनट्स में और कितना राउंड्स कंप्लीट वो कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें 1 आवर में हमारे पास 5 राउंड्स हैं। टाइम हमें 1.5 में निकालना है, तो इसलिए 30 मिनट्स के लिए हम निकालेंगे। तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम। तो टाइम क्योंकि 30 मिनट्स है, उसको आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 हो गया। सो 2.5 राउंड और 30 मिनट्स में वो लोग कंप्लीट करेंगे, तो टोटल राउंड हो गए 7.5। तो दे विल क्रॉस 7 टाइम्स, क्योंकि ऑप्शन 0.5 है, हाँ, वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन ए। ठीक है, वर्क डन के ऊपर है। अब वहां पे कितने इंडिविजुअल्स है, W, X, Y और Z दे रखा है, उनका वो दे रखा है कितना कर सकते हैं इन हाउ मेनी डेज। सो उसके बेसिस पे आप 100% निकाल लो यूनिटरी मेथड से, तो Z होना चाहिए जो सबसे जल्दी वर्क को कंप्लीट करेगा।
डी। हम्म। अब एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज मंथली इनकम पर्सन सर्टेन फैमिली 5 मेंबर्स, वन 10,000 है। व्हाट विल बी द एवरेज मंथली इनकम पर्सन सेम फैमिली अगर इनकम ऑफ वन पर्सन इंक्रीजेस बाय 1,20,000 पर ईयर। तो यहाँ पे मंथ है और यहाँ में ईयर का दे रखा है। तो ईयर में अगर 1,20,000 इंक्रीज हो रही है तो एक महीने में 12,000 सपोज इंक्रीज होगी। आप इसको डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपको 1 मंथ का वैल्यू मिल जाएगा। एवरेज का सिंपल फॉर्मूला, पहला 5 इंडिविजुअल्स जो ओरिजिनल एवरेज है 10,000 है। अब टोटल सम ऑफ इनकम क्या होगा, 5 × 10,000 तो 50,000 प्लस इनकम इंक्रीज हो रही है। सॉरी यहाँ पे 12,000 होना चाहिए था, मैंने 10 लिख, नहीं नहीं सॉरी 10 ही होगा क्योंकि 12 से डिवाइडेड है यहाँ, ठीक है। 50,000 और ये जो ऐड हुई है 10,000 एक हर महीने में इंडिविजुअल्स उतने ही रहेंगे तो अब हमारे पास आएगा 12,000 जो एवरेज इंक्रीज हो रही है 10 से 12 तक। ऑप्शन ए। यहाँ पे रेस हो रही है, 6 एप्पल्स कलेक्ट करने हैं, डिस्टेंस दे रखा है ये बकेट यहाँ पे है तो ये और फर्स्ट एप्पल के बीच में डिस्टेंस 5 मीटर है। बाकी जितने भी एप्पल्स हैं डिस्टेंस सेम है 3 मीटर्स। सो एक बार में आप एक ही एप्पल को पिक करके बास्केट में डाल सकते हो, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो या एंड से भी स्टार्ट कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो पहले आप इधर जाओगे एप्पल पिक करोगे फिर आप रिवर्स आओगे तो 5 का डबल 10 मीटर हो गया। सेकंड के लिए 8 इस साइड जाओगे 8 वापस आओगे तो 16 हो गया। तो ऐसे आपको एंड तक निकालना है इसका, बस आपको टोटल डिस्टेंस पूछा है कितना होगा तो ये सारा ऐड करोगे तो विल गेट 150 मीटर। ऑप्शन डी। हम्म। अब आर्चरी बेस्ड क्वेश्चन है। हमें दे रखी है वैल्यू 1 मीटर पूरा डायमीटर है, सेंटर में जो रेड सर्कल है उसका हमें रेडियस दे रखा है। प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, एरोज फॉल इन द रेड रीजन। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सिंपल, पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम होगा, हमें सिर्फ रेड में निकालना है तो ये जो एरिया ऑफ सर्कल है डिवाइडेड बाय ये पूरा, जो क्योंकि टोटल पॉसिबिलिटी एरो इस रीजन में कहीं भी हिट कर सकती है। तो सर्कल का जो एरिया है πr² इज द फॉर्मूला, रेडियस हमारे पास है, दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 80, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। सो पर्सन अलाउज 10% डिस्काउंट, कैश पेमेंट अगर होती है, मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट है 10% एंड ही स्टिल मेक्स 10% गेन। 10% डिस्काउंट के बाद भी प्रॉफिट हो रहा है 10%। सो कॉस्ट प्राइस निकालना है। अगर मार्क प्राइस हमें दे रखा है 770, तो यहाँ पे डिस्काउंट मार्क प्राइस पे तो 77 रुपीज का डिस्काउंट है तो डिस्काउंट के बाद प्राइस होगा 693। माइनस कर दोगे आप सिंपली दो वैल्यूज को। अब इक्वेशन बना लो, जो सेंटेंस दे रखा है कि डिस्काउंट दिया 10% तो प्राइस आ गया 693। अब उसमें से आप माइनस करोगे जो कॉस्ट प्राइस है, तो ये माइनस करके आपको डिस्काउंट या सॉरी प्रॉफिट बचेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मार्क प्राइस जो है ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, इसलिए आप 693 को माइनस करोगे कॉस्ट प्राइस से। 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, बेनिफिट या जो गेन होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, इसलिए हम एक्स की वैल्यू ले रहे हैं 10%। सॉल्व करेंगे एक्स के लिए, यू विल गेट 630, सी ऑप्शन। ऑप्शन सी। ठीक है। So that's all for the day. Thank you so much for joining us on Ansarkari and stay tuned. So next Sunday we'll take up 2017 CSAT paper and first 40 questions.